Hello friends, welcome to our YouTube channel EduKV. In this channel, you will find videos related to different subjects, career counseling and admission related information. So friends, let's start today's video related to class 12th, subject biology, chapter 1, reproduction in organism. Today we shall study about 4 topics. First one is the lifespan, second one is the types of reproduction, third one is the modes of reproduction and modes of specifically asexual reproduction, in which asexual reproductive structures and vegetative propagules. Okay, now let's start with the lifespan. What do you mean by the term lifespan? Lifespan is the period from birth to the natural death of an organism. Represents its lifespan from birth to natural death of an organism. Represents its lifespan. Lifespan of an organism not necessarily correlated with their sizes. The sizes of the crows and parrots are not very similar. Crow and parrots are not very different, yet their lifespan show a wide difference, 15 years and 140 years. इन दोनों के साइज एक जैसे हैं, but their lifespan makes a huge difference. There is a huge difference, 15 years and 140 years. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. Whatever be the lifespan, death of every individual organisms is certainty. That is, no individual is immortal. No individual is immortal except single cell organism. Now, apart from this one, we will proceed to the next slide about reproduction. As all of you know, reproduction consists of, etymologically it is made up of 2 words. First one is re, another one is production. Re means again, production means to produce, to synthesize. Basically, 2 different type of reproduction. First one is the asexual, another one is the sexual mode of reproduction. In the case of asexual reproduction, a single parent is involved, while in case of sexual reproduction, 2 parents are involving. That is, one is male, another one is female. In the case of asexual reproduction, no formation or fusion of gametes takes place, while in case of sexual reproduction, gamete formation and fusion applies here. Now, in case of asexual reproduction, only mitotic division happens. सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है. माइटोटिक डिवीजन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है जिसके अंदर it is known as equational division, in which number of chromosomes remain same. अगर क्रोमोसोम में डिफरेंस नहीं आता, that's why they are genetically identical. If they are genetically identical, their morphological characters are also similar, and hence they are termed as a clone. एक नया टर्म दिया जाता है जिसे हम क्लोन कहते हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन नहीं पाया जाता, उनमें मियोसिस होता है. मियोसिस के बारे में हम जानते हैं, दे आर टर्म्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, इन विच क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ. ओके, कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं. इनमें एक इंडिविजुअल से 4 डिफरेंट ऑफस्प्रिंग या गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और इनके जितने भी गैमीट्स बनते हैं या जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो सारे के सारे वेरिएशंस को शो करते हैं. Okay, now take a quick recap about the reproduction.
It is a biological process in which organism give rise to young ones, offering similar to itself. Young ones को offspring कहा जाता है. इसमें young ones या offspring वो देंगे अपने जैसे. Offsprings grow, mature and in turn produce new offspring. And this is the cycle of birth, growth and death. And इसी को हम कहते हैं continuity of species, that is generation after generation. Now, each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. कई बार organisms के habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it produce. Now, ये 3 points. First one, organism habitat, internal physiology and several other factors. ये combined करके ये 3 point हैं, ये मिलकर बनाते हैं रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और रिप्रोडक्शन को ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे पर्टिकुलरली आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. Now, mode of asexual reproduction. Actually, in the mode of asexual reproduction, normally 4 different types के होते हैं. First one is the fission, another one is the budding, third one is the spore formation, and the fourth one is the vegetative propagation. Fission. Fissions mean breakdown. इसमें एक ऑर्गेनिज्म 1 से 2 में ब्रेक हो सकते हैं या 1 से कई सारों में ब्रेक हो सकते हैं. जैसे इन केस ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम. इन अमीबा, वन इंडिविजुअल पेरेंट अमीबा वो बाइनरी डिवाइड करता है, फिजन करता है और 2 में डिवाइड कर जाता है. ठीक, इसी तरीके से पैरामीशियम में भी ये डिवीजन होता है, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन. नेक्स्ट वन जो होता है उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल का न्यूक्लियस कई सारे इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो सकता है. जैसे अंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा, इनके केस में यह पाया जाता है मल्टीपल फिजन, जिसमें देखिए एक मेन न्यूक्लियस था, वो फर्स्ट 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16. In this way, one individual organism become divided to form many organisms, और ये मल्टीपल फिजन होता है. नाउ थर्ड वन इज द बडिंग. बडिंग में हाइड्रा होती है. बडिंग किसे कहते हैं, जिसमें एक स्मॉल इंडिविजुअल ग्रोथ होता है, स्मॉल आउट ग्रोथ निकल जाता है पेरेंट बॉडी से, वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है उससे. लेटर ऑन इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड देन ग्रो आफ्टरवर्ड्स. ये एक हमारा केस हो सकता है हाइड्रा का, एग्जाम्पल बडिंग. देन द स्पोर फॉर्मेशन, दिस इज अनदर एग्जाम्पल विच टेक्स प्लेस इन द फंजाई. इसमें स्पोर बनता है और जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है उसे बोलते हैं स्पोरेंजियम. और ये रहे मल्टीपल स्पोर्स बने, ये डहिस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, रप्चर करेगा, उसके बाद इनमें से सारे स्पोर्स लिबरेट करेंगे. तो ये भी एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. नाउ अनदर वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज. एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, इनमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज मोटाइल माइक्रोस्कोपिक जू स्पोर्स. ये एग्जाम्पल है हमारा क्लमाइडोमोनास का. दिस इज द मोटाइल माइक्रोस्कोपिक जू स्पोर्स. जू ऑलवेज करस्पॉन्ड्स फॉर मोटिलिटी, मूवमेंट. इनकी मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि इनके पास फ्लैजेला पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द कोनिडिया. Example is penicillium. This is the example. This is the diagram of penicillia. Okay. Third one is the bud or hydra, which we have already studied. And the fourth one is the gemmules and the sponges. ये रहा वो केस. These are the asexual reproductive structures. Now,
Next topic is the vegetative propagules. This is the most important topic. Actually एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके, और वो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है। जैसे आप समझिए रनर, जो रनर है उसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस। रनर के अंदर क्या होता है, उसमें हमारे पास जो सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इनमें हम देखते हैं, ये टोटल हमारे पास एग्जाम्पल हैं, रनर, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, राइजोम, बल्बिल एंड लीफ बड्स। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम। फर्स्ट वन इज द डायग्राम ऑफ पोटैटो। पोटैटो में ये ट्यूबर है, ये इसकी आई है। दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड, और ये जो एक्सिलरी बड होता है यही हमारा रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। नाउ ये फर्दर हमारा अगर इसको ग्रो करना है तो हर एक पार्ट में एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दैट इज एक्सिलरी बड होना कंपलसरी है, तब जाकर वो ऑर्गेनिज्म या वो तब जाकर हमारा पोटैटो को क्रॉप ग्रो कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है जिंजर का। जिंजर में हमारा क्या कर सकते हैं, राइजोम होता है, ये है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजोम, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा राइजोम है, और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, हर एक पार्ट में नोडल पोर्शन होना चाहिए ग्रो करने से पहले। देन द स्ट्रक्चर ऑफ बल्बिल, एग्जाम्पल है ऑफ अगेव, ये हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल से, इससे एक नया प्लांट निकल जाएगा। देन द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द ब्रायोफाइलम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट, आपको ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके जो लीफ के बड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं लीफ बड्स, वहाँ से नया प्लांट निकलता है, और ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हो गया। उसके अलावा एक हमारा ऑफसेट का एग्जाम्पल है जो कि वाटर हाइसिंथ में पाया जाता है, ऑफसेट। तो टोटल यही हमने पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा देख लेते हैं। रनर, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन ऑक्जेलिस, दैट मीन्स जो ग्रास फैमिलीज के होते हैं उनमें। सकर इन द मिंट, ट्यूबर, पोटैटो, एक्सिलरी बड। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ एंड द पिस्टिया। बल्ब, ओनियन और गार्लिक, ओनियन और गार्लिक को जब ग्रो किया जाता है तो बल्ब के फॉर्म में होते हैं। देन राइजोम, जिंजर, बल्बिल, अगेव, लीफ बड्स, ब्रायोफाइलम। दीज आर ऑल वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आपको इनको याद करना है, समझना है। अब इसके बाद हम इसको पूरे टॉपिक को समझ गए हैं कि हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशंस फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगी। थैंक यू।